Hello students, welcome to my channel Big Education. So today we are going to continue our chapter with our next topic. So before starting, please like to my video, subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon. Okay, let's start. Indian National Satellite INSAT INSAT. In August 1983, the satellite INSAT 1B was launched in space. Because of this satellite, a major revolution came about in the area of telecommunication, television, radio, weather forecasting and space research in India. So INSAT satellite क्यों लॉन्च किया गया था? बिकॉज हमें जो भी हम टीवीज़ में सीरियल्स इधर मूवीज़ ये सब देखते हैं वो उसके लिए, फिर रेडियो पे जो हम म्यूज़िक्स वगैरह सुनते हैं, वेदर फॉरकास्टिंग, इन सब के लिए इनसैट सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था. Due to INSAT 207, आकाशवाणी और रेडियो स्टेशन could be connected to each other and आकाशवाणी करके भी चैनल्स आते हैं जिसमें हमें हमारे भविष्य इधर राशि के बारे में बताते हैं. फिर रेडियो स्टेशन इन सबको कनेक्शन मिला इनसैट की वजह से. दिस mechanism was also useful for research and rescue of people caught in some disaster like a shipwreck or an airplane crash, for forecasting weather, to look for and follow cyclones or storms. In the field of telemedicine and educational institution, the telemedicine services enable the population from remote areas to get advice and treatment from expert doctors. Public primary health center in villages have been connected with super specialty hospitals through INSET. एंड मतलब अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो गया अर्थ के अंदर या फिर हमारे प्लैनेट से ऊपर कोई भी प्रॉब्लम हो गया तो उसको भी ऑब्जर्व करने के लिए इनसैट सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था. टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस. अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग रेलवे इंजन्स चित्रनगंज लोकोमोटिव वर्क्स was set up at Chandigarh in Bhardwaj district in West Bengal. Steam engine, electric engine and engines running on diesel were manufactured here. The first diesel engine was manufactured at the diesel locomotive work at Varanasi. India started exporting railways engines to Sri Lanka, Bangladesh, Tanzania and Vietnam. So टेक्नोलॉजी प्रोग्राम भी एस्टैब्लिश किया गया था एंड वो कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया था? चित्रनगंज, वेस्ट बंगाल में. एंड ये इस प्रोग्राम का मेन मोटिव क्या था कि स्टीम इंजन से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक इंजन एंड इंजन रनिंग डीजल, मतलब इंजन डीजल्स पे कैसे चल सकती है, ये सब से रिलेटेड ये प्रोग्राम था. Telex service. The Department of Telecommunication under the Ministry of Communication started the Telex service in 1963 to transmit type message from one part of the country to another rapidly. मतलब टेलेक्स सर्विस का क्या मेन मोटिव था कि पहले हम सबको पता है कि पहले के टाइम में फ़ोन पे आइदर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये सारे नहीं थे, तो उस टाइम पे मैसेजेस पेपर पे लिख के भेजा जाता था. बट इसको ईज़ी करने के लिए क्या किया? टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ने टेलेक्स सर्विस को एस्टैब्लिश किया, जिसके हेल्प से मैसेज वन प्लेस से अनदर प्लेस में जाना बहुत इजी हो गया, भेजना. In 1969, the telex service started in Devanagari script in Delhi. And telex service एक स्क्रिप्ट में स्टार्ट हुआ. एक स्क्रिप्ट से देवनागरी में वो स्क्रिप्ट लिखा गया था दिल्ली के. लेटर इट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री एंड उसके बाद ये पूरे कंट्री में फैल गया. दिस सर्विस बिगेन टू बी यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड विद द राइज ऑफ इंटरनेट फ्रॉम 1990 टू द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सर्विस रिड्यूस. एंड उसके बाद इस सर्विस का सब लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. सैटेलाइट कम्युनिकेशन. In order to establish satellite communication with the help of an artificial satellite, a domestic satellite communication earth station was established in 1967 at Jodhpur, Tekra near Ahmedabad.
This made it easy to train scientists and technicians in setting up and running an Earth station within the country. एंड उसके बाद सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर को भी इस्टेब्लिश किया, लॉन्च किया गया। क्यों? बिकॉज अगर कोई सैटेलाइट के बाहर जा रहा है, सैटेलाइट हम लॉन्च कर रहे हैं तो उसमें भी पीपल्स होते, तो उनसे टॉक इजीली हम टॉक कर सके, इसके लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर को लॉन्च किया गया था। दिस मेड इट सो ईजी। इन 1970 a center was established at आरवी नियर पुणे equipped फॉर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। एंड ये कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था? इरवी नियर पुणे में। पिन कोड फ्रॉम 15 अगस्त 1972 द पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट स्टार्टेड द 6 डिजिट पिन कोड सिस्टम इन द कंट्री। उसके बाद 15 अगस्त 1972 में पिन कोड सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया, लॉन्च किया गया इंडिया में। The postal index code was indeed to bring efficiency in distributing the mail. In this system, the country was divided into 9 regions. एंड जब पिन कोड का सिस्टम स्टार्ट हुआ था इंडिया में, तो उस टाइम पे हमारा कंट्री क्या 9 पार्ट्स में डिवाइड था। The first digit of pin code indicate the region, the second digit indicate the sub-region, the third digit show the main distribute's main district, while the remaining 3 digits show the location of the local post office. So इसमें जो फर्स्ट के 3 डिजिट थे वो रीजन, सब रीजन और डिसबर्समेंट डिस्ट्रिक्ट को डिस्क्राइब करते थे। एंड जो बाकी के थ्री नंबर्स थे वो किसको? लोकल पोस्ट ऑफिसेस के लोकेशंस को डिस्क्राइब करते थे। फॉर महाराष्ट्र 40, 41, 42, 43, 44। महाराष्ट्र के लिए क्या क्या है? 40, 41, 42, 44 आर द फर्स्ट 2 डिजिट। इन 1986 द स्पीड पोस्ट सर्विस वॉज स्टार्टेड टू सेंड पोस्टेज रैपिडली। एंड उसके बाद से जो भी पोस्ट या मेल्स रहते थे वो फटाफट सेंड होने स्टार्ट हो गए।